Hello, good morning, students. Once again, you are welcome to our new video with new chapter. Chapter number 3, The Midnight Visitor by Robert Arthur. This is a detective story about secret agent Osable, whose name was Osable, a secret agent is expecting to get a very important report. Another secret agent was Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Osable outwit him? This is the story. ये एक सीक्रेट एजेंट की स्टोरी है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोई रिपोर्ट है उसे पाने की उम्मीद करता है. एंड द अनदर सीक्रेट एजेंट इज़ मैक्स, जो उसको धमकी देता है पिस्तौल दिखा के उस रिपोर्ट को वो लेने की कोशिश करता है. और क्या ऑसिबल उससे आउटविट करता है? तो दिस स्टोरी वी विल रीड इन दिस चैप्टर. ओपन योर बुक Footprints Without Feet on page number 14. Osable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. देखिए, फॉलर ने बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स मीन्स डिटेक्टिव लोगों की स्टोरीज़ बहुत पढ़ी हैं, लेकिन फॉलर ये उसको देख कर के मानता है कि वो कहीं से भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. फॉलोइंग हिम मीन्स वॉकिंग आफ्टर हिम वेयर डाउन टू द मस्टी कॉरिडोर. मस्टी कॉरिडोर मीन्स स्टेल विद बैड स्मेल, यानी कि बदबूदार वो कॉरिडोर था. वहाँ से उसके पीछे पीछे वो चलता है. ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल. हियर ग्लूमी मीन्स सैड और फुल ऑफ डार्कनेस. दैट होटल इज़ फुल ऑफ फाउल स्मेल and full of darkness, where Osable had a room. Osable had their room in that hotel, and Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a sitting for a romantic adventure. और ये जो होटल का रूम था, ये दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर रोमांटिक एडवेंचर. Osable was, for one thing, fat, very fat. Osable, it was his physical get-up. He was very fat, and then there was his accent. Here, accent means way of speaking. Though he spoke French and German passably, German and French he can speak. Passably here means fairly, जैसे तैसे. He had never altogether lost the American accent. French and German he could speak anyhow, but American accent he did not forget. He did not lose. He had brought to Paris from Boston 20 years ago. He had brought to Paris from Boston when? Before 20 years. You are disappointed, Osable said. Osable ने उससे कहा कि तुम डिसअपॉइंटेड हो गए. Wheezily means looking, wheezily over his shoulder.
You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage. यानी कि वो बोला कि 20 साल पहले उसको लेकर उसको वहाँ अपने साथ लाया था और कह रहा है कि वो तुम निराश हो गए। उसने अपने कंधों को उचकाते हुए ऐसे कुछ कहा, तुम्हें ये बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ, डिटेक्टिव हूँ, एंड गुप्तचर, स्पाई मीन्स गुप्तचर, एंड जो जासूसी के काम और ख़तरों के काम करता है, दैट इज़ एस्पियोनेज। एस्पियोनेज हियर मीन्स एस्पियोनेज act of finding out secret information. That this task is related to गुप्तचर से संबंधित काम होते हैं ये। और you wished to meet me because you are a writer. You wished me, possibly saying, you wished me to meet me because you are a writer. Follower, who is follower? Follower is a writer, as Osable is saying here. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned means thought. You thought mysterious figures in the night. You thought about mysterious figures in the night. The crack of pistols, drugs in the wine. All these things he envisioned or he thought about. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties. Here means कि इसके बजाय तुमने एक फ्रांसीसी म्यूज़िक रूम में एक ऐसे बेढंगे कपड़े पहने हुए मोटे आदमी के साथ एक बड़ा मोनोटोनस, यानी कि फुल ऑफ बोरिंग इवनिंग यू पास्ट। जो काली आँखों वाली जो लेडीज़ होती हैं, जो चुपचाप से अपने लेटर्स या अपने मैसेजेस पाने के स्थान पर केवल एक साधारण टेलीफोन कॉल वो प्राप्त करता रहता है। दिस इज़ हिज जॉब ओनली, सिंपल जॉब, है ना। जबकि होना ये चाहिए था कि उसे तो ब्यूटीफुल लेडीज़ के मैसेजेस हाथ में लेने चाहिए। एंड यू हैव बीन बोर्ड, यू हैव बीन वेरी मोनोटोनस हियर। तुम बहुत बोरिंग हो, तुम बहुत बोर हो गए होंगे इस काम से। The fat man chuckled to himself. The fat man chuckled to himself. Chuckled means laughed. अपने आप ही हंसा वो fat man. As he unlocked the door of his room. As he unlocked or means opened. As he opened the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. और अंदर उसने जैसे रूम खोला तो वहाँ एक फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर होता है ना। डिसअपॉइंटेड मतलब फ्रस्ट्रेटेड मीन्स डिसअपॉइंटेड, यानी कि जब उसने अपने कमरे का जो दरवाज़ा खोला तो मोटा आदमी मुंह बंद करके हंसा और अपने डिसअपॉइंटेड गेस्ट को अंदर आने देने के लिए एक और खड़ा हो गया। जैसे हम किसी की रेस्पेक्ट करने के लिए एक साइड में खड़े हो जाते हैं और उनको निकलने देते हैं, आने देते हैं। इन दिस वे यू आर disillusioned, Osable told him.
You are disillusioned means set free from false belief. अब आप जो है क्या है कि आप विश्वास टूटने से निराशाग्रस्त हो गए. ऑसेबल टोल्ड हिम, उस ऑसेबल ने उसको बताया कि विश्वास टूट गया इसलिए आप निराश हो गए. अब निराशा कैसे उसमें बढ़ गई, कैसे विश्वास टूट गया. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, बट बी हैप्पी, डोंट लूज योर हार्ट, यू विल सी अ पेपर हियर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा पढ़ने के लिए. You will see presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. ये अभी तुम्हारी सारी निराशा दूर हो जाएगी. और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच मैनी मैन एंड वीमेन हैव कहना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया. हैव थ्रोन देयर लाइव्स in danger to receive those papers. Come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? Someday, very soon, the paper will affect the history of मतलब ये किसी दिन ये कागज़, ये पेपर इतिहास की दिशा को काफ़ी बदल देगा और उसको बड़ा इफ़ेक्ट कर देगा, प्रभावित कर देगा. और इस ख्याल में एक नाटकीय फीलिंग्स भी हैं, क्या नहीं है. मतलब ऐसा कुछ, वो इतनी सारी बातें हैं उस पेपर के बारे में जब वो बोल रहा है तो ये बड़ा हिपोक्रेसी या ड्रामेटिक लग रहा है. बट इट मे बी ट्रू. देखिए, पढ़ते जाइए फर्दर, हमको क्या आगे इंफॉर्मेशन मिलती है उन पेपर्स के बारे में. एज ही स्पोक, ऑसेबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ दैट डे. जैसे ही वो बोला, ऑसेबल ने अब पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद लाइट जलाई. जैसे ही लाइट जली, फॉलर को उस दिन का पहला वास्तविक रोमांच, यानी कि एक रोमांटिक फीलिंग उसको महसूस हुई. ऑथेंटिक थ्रिल है ना. ऑथेंटिक थ्रिल मीन्स, ऑथेंटिक मीन्स जेन्युइन, ट्रू, थ्रिल मीन्स एडवेंचर, उसको महसूस हुआ. और and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. In the room, in the middle, a man who was having a automatic pistol in his hand. He was standing. Ausable blinked a few times. कुछ समय तक ऑसेबल ने अपनी आँखें यूं मिचमिचाई. ब्लिंक मीन्स विंक्ड आइज. ऑसेबल विंक्ड हिज आइज. मैक्स ही व्हीज्ड, स्पोक, मतलब बड़ा ही उसने कैसे बोला, रेटिंग साउंड ऑफ ब्रीथ, घरघराहट की आवाज़ के साथ में सांस लेते हुए बोला उसने. मैक्स he wheezed, you gave me quite a start. You gave me quite a start. तुमने बिल्कुल एक मेरे को एक स्टार्ट दिया, एक ब्रेक दिया. I thought you were in Berlin. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? मैंने तो ये तुमको बर्लिन में समझा था कि तुम बर्लिन में हो. बर्लिन इज़ इन जर्मनी, वहाँ हो, लेकिन तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो पेरिस में.
Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. यानी अब ये मैक्स का थोड़ा सा हवाला बता रहे हैं, मैक्स का लुक कैसा है, यानी कि मैक्स पतला पतला दुबला सा था, ज़्यादा लंबा नहीं था, और उसकी शक्ल कैसी एक क्लेवर फॉक्स की तरह लग रही थी, नुकीले चेहरे से कुछ कुछ मिलती जुलती थी। मतलब उसका वो रिजेंबल कर रहा है, मतलब वो रिजेम्बलेंस मीन्स मिलता जुलता होना, उस फॉक्स के नुकीले चेहरे से उसका चेहरा वो मिला रहा है। मैक्स का चेहरा नरेटर मिला रहा है फॉक्स के नुकीले चेहरे से। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड मीन्स विस्पर्ड, वेरी इन अ वेरी स्लो वॉइस he spoke. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. वो रिपोर्ट जो आज की रात लाई गई है वो न्यू मिसाइल्स से रिलेटेड रिपोर्ट हैं। मिसाइल्स मीन्स एक्सप्लोडिंग वेपन, है ना, जो लड़ाई में काम में ली जाते हैं वो मिसाइल्स कहलाती हैं। I thought I would take it from you. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than yours. क्योंकि मैंने ये तुम्हारे से मेरे हाथ में लेने के लिए सोचा था, क्योंकि मैं सोचता था कि ये तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेंगी। In this way, the next part we will continue in the next video. Till then, be safe, stay at home and take care of yourself. God bless you. Thank you.